So, Madam Chairperson, my very sole argument is based on this fact that when a student does BA, BSc, or any other degree, the liability and the rate of employment is not enough. It is so obvious that the student will pursue a further degree. I am not talking of research, I'm not talking of scholars, I am only talking of an individual who's worried about his or her employment over here. And it is very sure and considerate. You cannot get a degree just in terms of BA, BSc, or any 3-year course. It needs to be integrated. When I talk of integration, Madam Speaker, over here, another highlight I would like to draw over here is that today this integration of course does not only opens new door when we look at individuals, especially 50% of them engrossed in the race as women. There are women students who are engrossed towards these integrated courses. Honorable Chair, and education policy. They were talking about the integrated courses. Why were they introduced? So that time could be saved. I mean, she is right, but she is not able to highlight her own flaws, Madam Speaker. Because for saving time, that was the one thing that this course was employed. लेकिन वो बच्चे जिन्होंने 2012 में ये जब पॉलिसी जब इंटीग्रेटेड कोर्स की शुरुआत हुई थी बीएससी बीएड में और बीए बीएड में तब उसकी शुरुआत हुई तब से 2 बैच खत्म हो चुके हैं लेकिन आज भी the students are not qualified 1000+ students seated qualified कर चुके हैं लेकिन then also they can not apply और मैडम जो वो महिलाओं की बात कर रही है ये बात सत्य है और I would like to talk about the ground reality of this nation हाँ हमारे पास उतना समय नहीं होता है जो बच्चे होते हैं 24-25 की उम्र में ये raising the age of marriage is a different question उनके लिए शादी की बात कर जाती है तब तक उन्हें नौकरी की सवाल उठाया जाता है जो 4 साल उन्होंने बर्बाद किए और क्यों भूल जाना चाहते हैं केपीएस में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो डिग्री प्राप्त करते हैं इंटीग्रेटेड बीएड की उन्हें जॉब प्रोवाइड करी जा रही है और रीजनल इंस्टीट्यूशंस वो भी दैट इज द क्लॉज दैट इज इंक्लूडेड लेकिन ये इतनी कुख्यात जो यूनिवर्सिटी है उसके हजारों स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग पर जाते हैं इंटर्नशिप करते हैं रिसर्च करते हैं उनको नहीं इंक्लूड किया जा रहा है उनका टाइम वेयर इज देयर टाइम और वो लड़कियां जो पढ़ रही हैं दे हैव आल्सो नॉट बीन उन सब के अधिकारों को छीन लिया गया है माननीय मंत्री जी इन्होंने बात करी तब सरकार तो आपकी थी अगली बात पर आते हैं इन्होंने लड़कियों की बात करी 4 साल की डिग्री है बच्चा 17 या 18 की उम्र में कॉलेज में जाता है 20 या 21 का होता है जैसे हम सब है शादी इन्होंने अभी कोट करा as she said I quote unquote that a woman gets married around the age of 24 or 25 and is thus wasting a time I do not understand मंत्री जी का अनुरोध है कि सब्जेक्ट से ना हटके I'm just quoting her madam yeah so the main concept which I would like to highlight and I did highlight over here was that if a 1-year addition to the BSc degree can increase your chances of employment 20 से अगर 21 साल में पढ़ के आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें और अगर आप 4 साल की डिग्री कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे हैं 3 साल की डिग्री में उसको डिप्लोमा कंसीडर कर रहे हैं स्टिल कुछ मिल तो रहा है इट वाज योर गवर्नमेंट दैट मेड a dropout consider a dropout it is our government which made the degree if a 4-year one a degree if a 3-year one not a dropout but a diploma आपने बात करी कि यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंटर्नशिप के लिए नहीं भेजा जाता है it was our government that introduced vocational courses under the national education policy you call it a failure I call the national education policy a vision of Pandit Madan Mohan Malviya that stands for the vision of education for all. You call this national education policy a failure. I call it the 185-year-old Macaulay education policy system with freedom. You call it a failure. I would go on ahead and say that it is the record 320 million students that have been enrolled. And let me tell you, 37% of them have been enrolled into government institutions under our government. This is a record number. You call it a failure. I call it under our government taking the students to digital India. When there was COVID, how did you pursue your internship? How did you pursue your courses? How did you pursue your degree? And the more impressive statistic over here is that after the COVID era, when digital India was boosted, the factors and the statistics
I would say it is your perspective and not the policy. Yes, it is our our government is talking about the digital efforts that they put in while the COVID-19 pandemic. But madam, what about the reality, the rural India they're talking about? Do we really have phones? The families that were hungry. Yes, at that point of time, this is the reality. There is a 10,000 का फोन खरीदना जो 200 रुपए की मजदूरी कर रहे होते हैं उनके लिए आम बात नहीं होती है और उस वक्त तो ये मजदूरी भी बीच में हस्तक्षेप ना करें। And ma'am, she was talking. माननीय सदस्य आपसे अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न से भटक रहे हैं। जो आपका प्रश्न है क्या आपको उसका उत्तर मिला? Ma'am, that is what I want to say. That तो आप उसको जल्दी खत्म yes, करें। ma'am. So the honorable government madam chair was talking about the diploma, but diploma does not guarantee jobs, and that is what we would like to see. That 4 years that they have wasted. What is just merely for a diploma? No, madam, it was for jobs because jobs are the ones that feed our belly. It is not diploma, madam. That is what a government need to understand. It is our perspective. It is not our own perspective. ये उस उन बच्चों की सोच है जो धूप में बैठे थे और अपने एग्जाम्स नहीं दे पा रहे थे, जिन्होंने इस कोर्स में सिर्फ इसीलिए एडमिशन लिया था क्योंकि वो केवी में पढ़ाना चाहते थे। केवी इज अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स अस ample amounts of opportunities, लेकिन उनका अधिकार छीन लिया गया, and that are the unkept promises of the national education policy. We will see the future, but ये present की बात कर लेते हैं मैडम, that they have not been able to fulfill the requirements of the people. जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। Will the Minister of Defense be pleased to state whether government is aware of the recent injection of high technology and biologically weaponry in the other countries? If so, whether the government proposes to review the existing state of technology of defense preparedness of the country's armed forces and details of any other steps that the government proposes to take to meet the situation. Honorable Minister of Defense. धन्यवाद अध्यक्ष जी। अनुमति है प्रश्न का उत्तर दो भागों में प्रश्न पूछा गया, दो भागों में ही उत्तर देती हूँ। पहला प्रश्न पूछा गया बायोलॉजिकल वेपनरी यानी जैविक शस्त्रों की क्या स्थिति है और कौन से राष्ट्र जैविक शस्त्र बना रहे हैं। तो हम आज मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि यह प्रश्न भारतीय संसद में पूछा गया है। मुझे आश्चर्य तब नहीं होता जब ये चाइना की संसद में पूछा जाता कि हम कौन सा नया वायरस बना रहे हैं। मुझे आश्चर्य तब नहीं होता जब ये रूस की संसद में पूछा जाता, पर यह उस भारत देश में पूछा जा रहा है जिसकी नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। मैं बता दूं कि यूएन ने जैविक और जहरीले हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण और भंडारण को सभी को प्रतिबंधित कर दिया है प्रभावी रूप से। और अभी भारत की स्थिति इतनी नहीं आई है और भारत इतनी ओछी हरकत पे नहीं गिरा है कि वह किसी कंट्री को समाप्त करने के लिए या किसी शत्रु राष्ट्र से झगड़ा मोल लेने के लिए जैविक और जहरीले हथियारों का उपयोग करे। पहली बात, हम यूएन के एमओयू के तहत हमने जिस संधि पर हस्ताक्षर किए उसमें 185 और सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं जो इस बात को मानते हैं कि हम अपने टेरिटरी में, अपने देश के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जैविक और रासायनिक शस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे। भारत इस संधि को तोड़ने की सोच भी नहीं रहा है और इसलिए हम बायोलॉजिकल वेपनरी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, प्रश्न का दूसरा भाग जो था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी प्रौद्योगिकी विकास, भारत ने क्या प्रौद्योगिकी विकास किया है, भारत ने सैन्य या रक्षा के क्षेत्र में क्या प्रौद्योगिकी विकास किया है। तो महोदय आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगी कि भारत आज सैन्य शक्ति के रूप में सभी आयामों में सुदृढ़ बनकर उभरा है। अगर वायु में हमसे कोई टक्कर लेने की बात करता है तो हम वीर हनुमान की तरह उसे जवाब देते हैं, तेजस से, अग्नि से, पृथ्वी से और प्रलय से, जो देश की सर्वोत्तम, देश की नहीं विश्व की सर्वोत्तम विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइलें हैं। अगर हमें कोई पानी में हमें मार देने की सोचता है तो हम मत्स्य अवतार पर हमारी रक्षा करती है वहां पे अरिहंत पनडुब्बी जो हमारी अपनी बनाई गई परमाणु पनडुब्बी है। इतना ही नहीं, मत्स्य अवतार
रक्षा करते हैं शिप फिटेड गन्स जो कि पुनः भारत में ही निर्मित की गई है। और अगर फिर थल पर आकर कोई हमें खुली चुनौती देता है तो फिर हम नरसिंह अवतार का रूप धारण कर उसका वक्ष स्थल चीरने को तैयार बैठे हैं। और उसके लिए हमारे पास है फ्यूचर कॉम्बैट सिस्टम जो कि है बैटल टैंक्स और कॉम्बैट व्हीकल्स। तो इस प्रकार थल, जल और वायु तीनों रूप में हम सक्षम है। और इतना ही नहीं, आपकी सरकार की तरह हमने सैनिक अध्यक्ष जी इनकी सरकार की तरह हमने सैनिकों को सिर्फ अफसरों के पैर के नीचे दबा कर नहीं रखा है। हमने अपने सैनिकों को यह स्वतंत्रता दी है कि देश में जो तकनीकें उत्पन्न हो रही हैं वे उसका स्वतंत्रता से, स्वायत्तता से उपयोग कर सके। और इसीलिए इस नए उभरते सैन्य शक्ति में सुदृढ़ बनते भारत का अब एक ही ध्येय वाक्य है कि द्वंद्व कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक फेंक जहां तक भाला जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी माननीय सदस्य। आपने कहा कि संसद में पूछा गया कि अब हम कौन सा वायरस बना रहे हैं। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछने की कोशिश की थी कि अगर अगली बार कोई देश वायरस बनाता है तो हम उससे लड़ने में कितने सक्षम हैं। दूसरी बात, आपने बोला टेक्नोलॉजी में हमने बहुत विकास किया है, फिर भी आज रशिया के रिटायर किए हुए युद्धपोत इंडिया खरीदता है। ये तो वही बात हो गई जो उनके लिए कबाड़ है वो हमारे लिए पहाड़ है। क्यों? माननीय मंत्री जी, मैंने प्रश्न को वैसे ही लिया है जैसे प्रश्न को कहा गया था। प्रश्न में जो शब्द थे वो थे बायोलॉजी। मंत्री जी आप प्रश्न का हाँ, सॉरी मैडम, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, नॉट बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी डिफेंस। सुरक्षा की बात आपने नहीं की, आपने बायोलॉजिकल वेपन के विकास की बात की। हमने बताया हमारी सरकार बायोलॉजी वेपन के विकास में कोई भी किसी भी तरह से दिलचस्पी नहीं रखती है। दूसरी बात, अगर कल को यूएन इस बात से प्रतिबंध हटा देता है और कोई शत्रु राष्ट्र अपने बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर हम पे जैसे कोरोना वायरस या किसी तरह के वायरस से हमला करने की कोशिश करता है तो हमारे पास भी पर्याप्त मात्रा में जैविक शास्त्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों की टीम है। और अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही संवेदनशील विषय है, इसलिए अनुच्छेद 8 के आरटीआई एक्ट के भाग 1 के ए भाग के तहत मैं इनके इस सवाल का जवाब देना सदन में अनुचित समझती हूँ क्योंकि ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल मैटर है। दूसरी बात, आपने कहा कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हम कर रहे हैं, हमने रूस से किस कबाड़ को आज तक आयात किया है। मुझे डेटा दे दीजिए कि भारत सरकार ने इस तारीख को इस कबाड़ को भारत में आयात किया। मैं आपको बता दूं कि वो कबाड़ था या नहीं था। प्लीज मुझे डेटा चाहिए, स्टैटिस्टिक्स पे बात करेंगे। कबाड़ इस शब्द पे मैं और कोई बात अपनी गवर्नमेंट की तरफ से और कोई बयान नहीं देना चाहती। धन्यवाद। नाउ जी माननीय सदस्य आपको प्रॉपर समय दिया गया था और समय के अभाव में देखते हुए नाउ द सेशन इज एडजर्न्ड। माननीय मंत्री जी आपको पर्याप्त समय दिया गया था। Now the session is adjourned to meet at closing ceremony of first AIO National Women Student Parliament at 2 p.m.